Hello friends, today I will discuss about that scales of fishes, and which is a very important topic of that fishery biology. And the skin is one type of the derivatives of the skin, and it is also called as a characteristics of the fishes. Okay, तो आज हम पूरी की पूरी information देने वाले हैं scales के बारे में. Before the talking of that scales, some are that basic information of that fishes, and then after that jump into that our main topic. Okay. First of all, we are recalling that classification of that fishes. Okay, the fish is a one type of that vertebrate, and the vertebrate that classify into the two types. First of all, Gnathostomata and Agnatha. Here one is that Agnatha is an ancestor of that Gnathostomata. Okay, here one is that Agnatha is a one type. It is also called as a jawless fishes. Okay, and for examples are that lamprey and hagfish, and the Gnathostomata fishes are that classified into the two base terms, chondriocthes species and osteocthes species, on the basis of that which types of bones that are present. It is called that chondriocthes species and osteocthes species. Right now the example of that chondriocthes species that are shark and ray fish, electric ray fish, right? And osteocthes species के बारे में हम बात करें तो bony fishes, hippocampus, rohu, these are all the type of that osteocthes species. Okay, we are discussing that classification of the fishes. Here one is that this is a basic structure of that fishes. Okay, here one is that fishes में कौन से स्ट्रक्चर होते हैं उससे पहले हमें उसकी डिस्कशन करनी लेनी चाहिए. तो यहाँ पर हेड पोर्शन होता है, ट्रंक रीजन होता है और टेल पोर्शन होता है. ओके, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये रोहू का डायग्राम है, लेम्योरोहिता का. तो जो यहाँ पर जो हेड पोर्शन है, यहाँ पर हमें आइज़ दिखने को मिलते हैं. हेड पोर्शन में हमें नॉस्ट्रिल्स दिखने को मिलता है, माउथ दिखने को मिलता है. ओके, एंड द रोहू इज़ अ वन टाइप ऑफ दैट ऑस्टियोक्टिस स्पीसीज, सो दैट यहाँ पर जो ओपोर्क्यूलम है वो प्रेजेंट होगा. ओके, और जो बहुत सारे फिन्स के यहाँ पर आपको टाइप्स दिखने को मिलते हैं, और दैट फिन्स विच इज़ एसोसिएटेड दैट स्विमिंग एक्टिविटीज़. ओके, माउथ दैट एक्टिवेट्स इनटू दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ जो है वो इंजेक्शन पार्ट्स के लिए, यानी कि फूड को एंट्रेंस, फूड का एंट्रेंस है, और ऑल्सो पार्ट इन दैट रेस्पिरेशन. ओके, यहाँ पर रेस्पिरेशन में भी ये माउथ हेल्प करता है. नॉस्ट्रिल इज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट रेस्पिरेटरी सिस्टम. हियर वन इज दैट you can see that lateral lines, it is a one type of the sensory organ. Okay, and a caudal fin also, which is a direction, which gives the direction and that follow the direction of that rivers. कैसे वो डायरेक्शन बदलती हैं by the help of caudal fin. Okay, we are discussing that the basic structure of that fishes. Then after that our mind is having the one type of the question, why scales are present into the fishes. It is a very interesting question, and it is know about, it is our, हमें क्या करता है, तो हमें वो फिशेस के बारे में और भी जानने के लिए उत्सुक करता है. ओके, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि प्रोटेक्शन, द स्केल्स गिव्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट दैट पैरासाइट्स, डिसीज, इंजरी एंड द प्रीडेटर. यहाँ पर जो पैरासाइट्स है, बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं ओशन और ऑल्सो कॉल्ड एज अ मराइन वाटर में. ओके, यहाँ पर डिसीज़ भी होंगे क्योंकि वाटर जो है वो पॉल्यूटेड ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता. ओके, तो पॉल्यूटेड वाटर में बहुत सारे पैथोजेंस, बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं. तो उसके हिसाब से अगर जो फिश पर आउटर लेयर नहीं होगा, यानी कि उसका जो सुरक्षा कवच नहीं होगा, तो क्या होगा, तो स्किन से डायरेक्टली ये पैथोजेंस उसके शरीर में एंट्री कर देंगे. ओके, दिस इज अ वन टाइप ऑफ दैट वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दैट स्किन्स. थर्ड थिंग इज दैट इंजरी से भी ये सुरक्षा प्रदान करता है. और फोर्थ वन इज दैट इट गिव्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द प्रीडेटर. ओके, द नेक्स्ट वन इज दैट it helps for that locomotion, and second thing is it gives the various types of colors. Okay, यहाँ पर दो टर्म्स मैंने दी हैं कि लोकोमोशन में भी ये हेल्प करता है, यानी कि अगर
हम जानते हैं कि एंसेस्टर जो हमारी फिशेस थी, यानी कि डिप्नोई फिशेस और अदर टाइप्स ऑफ फिशेस, क्रॉसोप्टेरिजियन फिशेस में क्या होता था, जो फिशेस थी उस पर बहुत सारे जो हम कह सकते हैं कि ह्यूज और हाई वेट की स्केल्स थे, तो उसके हिसाब से उसे तैरने में बहुत ज़्यादा मुश्किल ही होती थी। और यहाँ पर जो हमारी जो मॉडर्न फिशेस है, तो मॉडर्न फिशेस में क्या हो पाया जाता है, तो मॉडर्न फिशेस में फ्लेक्सिबल स्केल्स पाए जाते हैं और उसके हिसाब से वो स्विमिंग ईजीली कर सकती है। ओके, एंड देन सेकंड वन इज़ दैट स्केल्स के बहुत सारे, अगर स्केल्स के यहाँ पर पिगमेंटेशन होता है, यहाँ पर उसका बहुत सारे पिगमेंटेशन भी उसके अंदर होता है, तो उसके हिसाब से उसे कलर भी देगा ये स्केल। ओके, सी दिस इज अ डायग्राम ऑफ दैट कलरफुल फिशेस। ओके, in this one also, that are you can see that and you can idea about that scales gives the colors, and it is also helpful for that beautiful structure of that fishes. Okay, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि beautiful structure भी प्रदान करता है fishes को, and it also gives that for helpful for that identification and the classification. Okay, identification में क्यों यहाँ पर help करेगा, तो कैसे help करेगा, यानी कि अगर प्लेकोइड स्केल्स प्रेजेंट है तो यानी कि ये क्या हो गई, शार्क फिश हो गई। ओके, तो उसके हिसाब से यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन भी हो पाता है बाय द हेल्प ऑफ स्केल्स। क्लासिफिकेशन भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। हमने आगे देखा कि ऑस्टियोइक्थिस स्पीसीज और कॉन्ड्रोइक्थिस स्पीसीज के हिसाब से हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। ओके, तो स्केल से हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, तो बाहर से ही हम देख सकते हैं और बाहर से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यस तो इस टाइप की फिशेस हैं। ओके, तो इट इज़ हेल्पफुल फॉर दैट आइडेंटिफिकेशन एंड दैट क्लासिफिकेशन। हियर ऑन इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केल्स। यहाँ पर आपको स्केल्स की सम टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर दिखने को मिलते हैं कि स्केल्स हमें प्रोटेक्शन प्रदान करती है, और अगेंस्ट इट इज़ हम उसका ओरिजिन देखें तो इट इज़ अ वन टाइप ऑफ द डेरिवेटिव्स ऑफ द डर्मल लेयर। ओके, को जो स्किन होती है उसका डर्मल पार्ट्स है, डर्मल पे रीजन में से ये उसका ओरिजिन है, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ डेरिवेटिव्स ऑफ द स्किन। ओके, एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ 4 पार्ट्स। स्केल जो है 4 पार्ट्स का बना हुआ होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेमिलर बोन, सेकंड वन इज दैट वेस्क्यूलर बोन, third one is that spongy bone, and fourth one is the dentine and which is attached is always that enamel. Okay, हमारे जो टीथ में जो इनेमल है उस टाइप्स का ही इनेमल यहाँ पर हमें दिखने को मिलता है स्केल्स में। यहाँ पर जो स्केल्स है आर द डिफरेंट एज अ साइज एंड शेप इन वेरियस टाइप्स ऑफ फिशेज। ओके, जो स्केल्स है वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट डिफरेंट साइज और शेप की हमें पाई जाती है। ओके, इट इज़ अ वन टाइप ऑफ दैट ऑल्सो कॉल्ड एज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, and the huge and the thick scales which are only present in that our ancestor fishes. We are already talking that ancestor fishes में क्या होता था, तो ह्यूज और थिक सेल स्केल्स के बारे में हमें आगे पढ़ा, जो हमें जो फिशेस को क्या करती थी, बहुत ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती थी। एंड देन our modern fishes can that flexible scales which are present into that ctenoid scales, like that the examples are that ctenoid or cycloid scales which are present in that our modern fishes. Okay, see this is a structure of that 4 parts of that consist of that scales. सी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या होता है, तो हमने देखा कि वेस्कुलर बोन होता है, पल्प कैविटी यहाँ पर हमें दिखाई है, आइसोपेडिन और एपिडर्मिस में से ये क्या है, ओरिजिन हुआ है। ओके, दिस इज अ टाइप ऑफ दैट। यहाँ पर कैसे हमें लेमिलर बोन या फिर हमें लेमिलर जो बोन है वो यहाँ पर दिखने को नहीं मिलता, लेकिन हम बाहर से अगर माइक्रोस्कोपी करके हम देखना चाहें तो वेस्कुलर स्पॉन्जी बोन और कॉस्माइन और दैट पल्प कैविटी हमें दिखने को मिलती है। ओके, देन नाउ we are focusing on that the different types of scales. First of all, the cosmoid scales which are present in that teleosteae and then the crossopterygian fishes. Okay, the next one is that placoid scales which are present in that shark, ray fish और all the types of chondrichthyes species. यहाँ पर आपको placoid scales दिख रहे हैं, तो placoid scales किस टाइप्स के होते हैं, यहाँ पर
जो स्केल है उसके साथ यहाँ पर 3 पार्ट्स जुड़े हुए होते हैं। प्लेकोइड स्केल्स की वन टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक है कि स्पाइन होता है, पल्प कैविटी होती है और बेसल प्लेट होती है। ओके, सी दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ दैट प्लेकोइड स्केल्स। द मीडियन स्पाइंस जो होता है वो बहुत लॉन्ग होता है, और जो लेटरल स्पाइंस जो दो आते हैं उसके अग्र और इंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन में, तो वो क्या होते हैं, वो छोटे होते हैं। ओके, ओपनिंग ऑफ द पल्प कैविटी और द बेजल रोहम्बिडोलियर प्लेट, यहाँ पर जो प्लेट है वो क्या करती हैं, तो स्किन से वो जुड़ी हुई रहती है यहाँ पर। ओके, दिस इज वन टाइप ऑफ दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट प्लेकोइड स्केल्स विच आर ओनली फाउंड इन दैट शार्क और रे फिश और ऑल्सो कॉल्ड एज अ chondrichthyes species. Okay, the third one is that the third type is that ganoid scales which are found in that some types of that also called as a carp and other types of fishes. Okay, see here on is that this is a structure of that ctenoid scales. The ctenoid scales which are present in that our modern fishes, you can see that the dorsal view and the ventral view of that scales. Here one is that this is a diagram of that showing the diagram of that various types of features of that scales. You can see that focus, circuli, radii, annuli. Okay, this is a whole about that features of the scales. Okay, हम scale से one type of क्या कर सकते हैं, तो हम scale से फिशिस की जो उम्र है, उसकी एज है, तो एज का डिटर्मिनेशन करने के लिए हम स्केल्स का क्या करते हैं, स्केल्स की सहाय से ही हम उसकी एज डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर जो फोकस है, फर्स्ट ऑफ ऑल द फोकस इज दैट it is a center part of that scales, and it is also found in that center. Okay, and it is the first part of the scales. यहाँ पर जब स्केल नहीं बना होता तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस बनता है और उसके बाद ही रेडियाई एन्यूलाई का प्रारंभ होता है, उसका डेवलपमेंट होता है। तो इट इज़ अ फर्स्ट डेवलपमेंट ऑफ दैट स्केल, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ फोकस। ओके, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि टीनॉइड फिशेस में क्या पाया जाता है, तो टीनॉइड फिशेस में ट्यूबरकल भी पाया जाता है इस दैट पोस्टीरियर फील्ड पे। ओके, फोकस के आगे जाए हम तो क्या पाया जाता है, तो रेडियाई पाई जाती है। तो रेडियाई इज वन टाइप ऑफ दैट सर्क्यूलर ग्रोथ लाइन ऑफ दैट स्केल्स। ओके, सर्क्यूलर लाइन है वो शो करती है ग्रोथ लाइन। ओके, यानी कि जितनी रेडियाई बहुत होगी, यानी कि रेडियाई की जो नंबरिंग है वो ज़्यादा होगी, तो ये शो करती है कि उसकी उम्र भी ज़्यादा होगी। ओके, द सर्क्यूला इज दैट, यहाँ पर जो सर्क्यूलाई है वो सर्कुलर टाइप की होते हैं, और जो रेडियाई है वो रेडियाई क्या करती है, जो उसके बीच में जो नॉब होती है उसके टाइप्स की होती है, यानी कि दो सर्कुलाई के बीच में जो नॉब है उसके हिसाब से वो कार्य करती है रेडियाई। ओके, तो सर्कुलाई याद रखना है कि सर्कुलाई इज अ ग्रोथ लाइन। ओके, आगे मैंने कहा कि रेडियाई it is not right. The circuli, it is a one type of that growth line, and growth line के हिसाब से ये कार्य करती है कि फर्स्ट से लास्ट तक जो सर्कुलाई बनी है उसके हिसाब से हम उसकी एज डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, और जो ईयर बाय ईयर जो उसके लाइन होती है, यहाँ पर हमें नहीं बताई गई कि एन्यूलाई भी होती है। तो एन्यूलाई जो है वो ईयर बाय ईयर, यानी कि 1 ईयर कंप्लीट हुआ है तो उसके हिसाब से सर्कुलाई को कवर करते हुए वन क्या होती है, एन्यूलाई भी होती है। ओके, दिस इज़ अ होल स्ट्रक्चर ऑफ दैट फीचर्स ऑफ दैट स्केल्स। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या करना चाह रही हूँ, कि सभी जो फीचर्स हैं वो हमें क्या किस में दिखने को मिलते हैं, आज की साइक्लॉइड और टीनॉइड स्केल्स जो है जिस भी फिशिस में पाई जाती है उसमें ये देखने को मिलते हैं। ओके, सो दिस इज़ अ आइडिया अबाउट द स्केल्स। हमने बहुत सारे स्केल्स के बारे में देखा कि किस टाइप्स के टाइप्स होते हैं, उसके बारे में हमने देखा कि, और स्केल्स का कौन सा फंक्शन है वो भी हमने देखा, और साथ ही साथ हमने ये भी देख लिया कि उसका क्लासिफिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग कैसे होता है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है कि हम एज डिटर्मिनेशन कैसे करें, तो एज डिटर्मिनेशन हम सर्कुलाई की नंबरिंग काउंटिंग करके उसकी एज डिटर्मिनेशन यानी कि उसका एज निकाल सकते हैं। ओके,
दिस इज़ होल अबाउट द स्केल्स। हमने देखा कि फिशरी साइंस में जो स्केल्स है इज़ अ वन टाइप ऑफ दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिशीज। ओके, this is a whole video of that scales. Okay, you can like this video, please like and subscribe my channel. Thank you.